Very good evening to all of you, my dear kids. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's class. Let me remind you that our eTuition family is providing quality education for your better tomorrow. So don't forget to be a part of our family. My dear class 9 students, today we are going to discuss the part 2 of our lesson, why do we fall ill? In the previous part we have discussed what is disease, what is health, everything, right? And in today's part we will be discussing what causes these diseases. Okay, what are the different types of causes of these diseases? So let's get started. So what are the points we are going to discuss today? We will be discussing about causes of diseases, types of diseases, infectious agent and means of means of spread and inflammation. Okay, so now what are the causes of diseases? See, it has two factors, okay, internal factors and external factors. Internal factors means which is inside our body, okay. So internal factors include hormonal imbalance. If there will be any hormonal imbalance, it can cause a disease, okay, like that allergic reaction, genetic disorder, malfunctioning of body organs, everything will cause what disease inside our body, right? External factors क्या हो सकता है? Unhealthy diet, like contaminated food, unhealthy food if you will eat, you will suffer from disease causing germs like bacteria, virus, fungus, pollution in the environment and unhealthy lifestyles, this will also cause diseases. Okay, now next, keeping community health in mind, there are two types of disease. Community health means, say we are living in a society, right? So many people are there, we have our neighborhood. So according to, on the basis of their transmission, it is divided into two types. What are they? They are infectious and non-infectious. Infectious means the cause of disease is external, that is means it is through microbes, and microbes can spread in community and hence it is infectious. It means it can be transferred from one person to the another. It means from the infected person it can get transferred to a healthy person. That's why it is called as infectious disease. Example is tuberculosis. Non-infectious, the cause of disease is mostly internal, inside your body, okay, not caused by infectious agent. It is not caused by infectious agent, and example are diabetes, cancer and high blood pressure. Okay, now so infectious disease have some infectious agent. एजेंट का काम क्या है? वो इन्फेक्शन करेगा. तो कौन कौन से एजेंट्स हैं? वी हैव वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन्स एंड वर्म्स. ये हमारी बॉडी में डिजीज क्रिएट कराती हैं. ठीक है, ओके. सो इन्फेक्शियस एजेंट में ये जो वायरस है, बैक्टीरिया है, फंगस है, ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं. क्या करती है? अपनी हमारी बॉडी में वो जल्दी मल्टीप्लाई करती हैं. लेकिन ये जो वर्म्स हैं वो कंपैरेटिवली बहुत ही स्लोली मल्टीप्लाई करती हैं. ओके, और जो वायरस है वो क्या करती है? वो देखो, वायरस बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्रिएचर है. ओके, वो जनरली आउटसाइड द होस्ट बॉडी ये नॉन लिविंग की तरह काम करता है. इट मीन्स उसे एक मीडियम चाहिए, एक होस्ट की बॉडी चाहिए जिसके अंदर वो रह सके, और होस्ट सेल के अंदर वो लिविंग एंड आउटसाइड द होस्ट सेल इट इज़ नॉन लिविंग. सो दे लिव इन होस्ट सेल, बट बैक्टीरिया होस्ट सेल में ज़्यादातर नहीं रहती, राइट. एंड वायरसेस, बैक्टीरिया, फंगस मल्टीप्लाई वेरी क्विकली, जो मैंने आपको बताया. और क्या है? वर्म्स बहुत कम, मतलब बहुत स्लोली मल्टीप्लाई करती हैं. और जो बैक्टीरिया है वो क्या करती है? एक दूसरे से पूरा क्लोजली रिलेटेड होते हैं लेकिन वायरस नहीं होते. और लाइफ प्रोसेस जो है बैक्टीरिया का वो क्या करता है? बहुत सेम टाइप होता है. तो बैक्टीरियल डिजीज़ के लिए जो मेडिसिन हम लेते हैं वो मैक्सिमम बैक्टीरिया के केसेस में काम करता है, लेकिन वायरस में ऐसा नहीं होता. See the difference between communicable and non-communicable, it means infectious or non-infectious diseases. See, they are caused by the attack of pathogen. क्योंकि infectious हमने पढ़ा outside external factors pathogens की वजह से, लेकिन non-infectious क्या internal changes की वजह से होते हैं. और infectious disease क्या है? वो जो external factors हैं उन्हीं की वजह से होती है और ये इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होती है. इन्फेक्शियस डिजीज़ एक पर्सन से एक डिजीज पर्सन से, ओके, एक डिजीज पर्सन से हेल्दी पर्सन को ट्रांसमिट हो सकती है, लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ नहीं हो सकती. एंड ट्रांसमिशन कैसे होता है? ये हेल्दी पर्सन से
सॉरी इन्फेक्शियस पर्सन से हेल्दी पर्सन को कौन कौन से मीडियम से, एयर, वाटर एंड वेक्टर्स, ओके। लेकिन यहाँ पे ट्रांसमिशन जो नॉन इन्फेक्शियस है ज़्यादातर तो ट्रांसमिशन होता ही नहीं है, अगर होगा तो हेरिडिटरी डिजीज़ जो होती है वो मदर फादर यानी फिर पेरेंट्स से चिल्ड्रन को हो सकते हैं। एंड कम्युनिटी हाइजीन कैन रिड्यूस द इंसिडेंस ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज। लेकिन क्या है, अगर कम्युनिटी में हम सब क्या अवेयर हो जाएं, हर जगह को साफ़ सुथरा रखें, हाइजीनियस रहें, तो इन्फेक्शियस डिजीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं। लेकिन नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ उसको हम कम नहीं कर सकते, राइट। ओके, नाउ एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक पेनिसिलिन ऑन बैक्टीरिया। देखो ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये एक बैक्टीरिया से बना, तो इसका काम क्या है, ये जो बैक्टीरिया होती है वो क्या करती है, उनके चारों तरफ एक सेल वॉल बनाती है खुद को बचाने के लिए, ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है ये क्या करेगी, ये जो प्रोटीन कोड जो बनाती है, जो बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो उसके ऊपर जाके काम करेगी, और ये क्या करेगी, जो सेल वॉल बनाती है उस प्रोटीन को बंद कर देगी, और सेल वॉल नहीं बन पाएगा बैक्टीरिया के ऊपर। एज ए रिजल्ट बैक्टीरिया क्या मर जाएगी, है ना, क्योंकि उसको सेल वॉल चाहिए बचने के लिए बैक्टीरिया को। लेकिन ये जो पेनिसिलिन है जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं, ये एंटीबायोटिक क्या करेगी, जो प्रोटीन बैक्टीरिया में सेल वॉल बनाती थी उसे बंद कर देगी, तो बैक्टीरिया के पास सेल वॉल नहीं बन पाएगा और बैक्टीरिया मर जाएगी। सो एंटीबायोटिक्स क्या करती है, वो सीवियरिटी जो है डिजीज़ की वो कम नहीं करती, ठीक है। वो क्या करते हैं, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है, जो ये एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं वो सिर्फ बैक्टीरिया के केस में काम करेगी, ओके, लेकिन ये वायरस के केस में काम नहीं करेगी, ओके। तो जैसे कि फीवर होता है, हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, किसके लिए लेते हैं, अगर फीवर के साथ अगर कोई अलग तरह के बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन कम होता है, वायरल इन्फेक्शन नहीं, क्योंकि वायरस का मैकेनिज्म दूसरा है। तो ये जो एंटीबायोटिक्स है ये उसके ऊपर काम नहीं करेगी। और क्या है, ये तो हमारी बॉडी में भी सेल होते हैं ना, लेकिन ये जो एंटीबायोटिक है हमारे सेल को इन्फेक्ट नहीं करती, क्यों, क्योंकि एनिमल सेल में सेल वॉल ही नहीं होता हमारे पास, तो वो कैसे इन्फेक्ट करेगी, राइट। ओके, नाउ नेक्स्ट मीन्स ऑफ स्प्रेड। कौन कौन से तरीके से हमारी बॉडी में ये डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं हमारी बॉडी से दूसरी बॉडी, एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट, मान लो कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ, सेक्सुअल इंटरकोर्स, और क्या हो सकता है, वेक्टर सच एज मॉस्किटो की वजह से, राइट। सी, एयर, वाटर, फिजिकल कॉन्टैक्ट, सेक्सुअल एक्ट एंड वेक्टर्स। नेक्स्ट, तो एयर के थ्रू कैसे, सी जनरली जो वायरल डिजीज़ होते हैं जैसे फीवर, कफ, एस्थमा, ये क्या होता है, हम स्नीजिंग करते हैं कि कफिंग करते हैं, तो क्या होता है इसकी वजह से एयर में क्या होता है, जो वायरस या फिर माइक्रोब्स होते हैं वो जाके फैल जाते हैं, और जो हेल्दी पर्सन जब उसे सांस में लेता है सो दे गेट इन्फेक्टेड। समझ में आया, यस। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर क्या है, कंटामिनेटेड वाटर कैसे होता है, मान लो, ओके, मान लो द गर्ल सिटिंग देयर इज हैविंग ए डिजीज, तो द एक्सक्रीटर रिमूव्ड फ्रॉम हर बॉडी इज हैविंग दैट बैक्टीरिया, ठीक है, तो उसके पास जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म वो माइक्रोब है उसके एक्सक्रेटा में, और वो एक्सक्रेटा पानी के थ्रू जाके जो ड्रिंकिंग वाटर में मिल रहा है, और उसी ड्रिंकिंग वाटर के सहारे हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर बॉर्न डिजीज होती हैं, जैसे टाइफॉइड, गैठिया, कॉलेरा, बोट्यूलिज्म, डायरिया एट्सेट्रा, ओके। सो नेक्स्ट इज सेक्सुअल एक्ट। सेक्सुअल एक्ट की वजह से क्या होता है, HIV लाइक डिजीज कैन स्प्रेड, बिकॉज सेक्सुअल एक्ट में क्या होता है, बॉडी के फ्लूइड एक्सचेंज हो सकते हैं थ्रू ब्लड, एक मदर से एक चाइल्ड को हो सकता है, लाइक दिस दे कैन बी ट्रांसमिटेड। सो और देखो हमारी सोसाइटी में, हमारी कम्युनिटी में और किस किस तरह से डिजीज स्प्रेड हो सकते हैं, फूड, एयर, वाटर हो गया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया, लाइक अदर एनिमल से भी हो सकते हैं, लाइक डॉग, लाइक इंसेक्ट, और इंजुरी हुआ या फिर किसी निडल से, डायरेक्ट एक्सेस से क्या हो सकता है, हमारे ब्लड के थ्रू में हमारे पास डिजीज स्प्रेड हो सकती है। सो हाउ आर जेम्स ट्रांसमिटेड जर्म्स, देखो ड्रॉपलेट की वजह से, एयर से, डायरेक्ट कांटेक्ट से, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट यानी क्या, डायरेक्ट कांटेक्ट मतलब हम लोग डायरेक्ट फिजिकली कांटेक्ट में, इनडायरेक्ट मतलब किसी चीज़ के थ्रू, है ना, व्हेनेवर इफ़ यू हैव स्नीज, ठीक है, आपने छींक दिया, ऐसे छींका, हाथ में आ गए जर्म्स।
आपने किसी चीज़ को पकड़ा और दूसरे वही चीज़ को पकड़े तो इसी तरह से जर्म्स ट्रांसफ़र हो सकते हैं, राइट। और वाटर के थ्रू भी हो सकता है, फूड के थ्रू भी हो सकता है, और वेक्टर जैसे कि कौन कौन से हैं वेक्टर, जैसे कि हमारा मॉस्क्यूटो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंसेक्ट, इनके थ्रू भी डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड। ओके, नाउ सो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस क्या होते हैं। देखो, हमारी बॉडी, ओके, आवर बॉडी इज बिगर देन द माइक्रोब्स, ठीक है, माइक्रोब्स से बहुत छोटे छोटे होते हैं और हमारी बॉडी जो है बहुत बड़ी है, राइट। तो ये माइक्रोब क्या करेंगे, वो स्पेसिफिक पॉइंट चूज करेंगे कि कौन से बॉडी पार्ट के थ्रू दे विल एंटर इनटू आवर बॉडी। हमारी बॉडी बहुत बड़ी है, सो वो क्या करेंगे, अपने पसंदीदा हिस्सा से दे विल एंटर आवर बॉडी। सो ह्यूमन बॉडी इज लार्ज कंपेयर टू माइक्रोब्स, राइट। सो तो क्या होगा, बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, पैरासाइट, प्रोटोजोआ, ये सारे क्या करेंगे, अपने फेवरेट पार्ट चूज करेंगे थ्रू विच दे विल एंटर। ओके, माइक्रोब्स हैव स्पेसिफिक एंट्री पॉइंट, सबका अलग अलग एंट्री पॉइंट होता है, वो ऑर्गन भी अलग अलग उनका होता है, कहाँ पे वो इन्फेक्शन कराएंगी, तो उनका एंट्री पॉइंट कहाँ पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाके इन्फेक्शन कराएंगे। मान लो किसी को लंग्स में इन्फेक्शन करवानी है तो किसके थ्रू वो एंटर होगा, नोज के थ्रू ना, एक्सटर्नल ऑर्गन के थ्रू दे विल एंटर टू द इनसाइड ऑफ आवर बॉडी, लाइक दैट। सो ऑर्गन स्पेसिफिक एंड टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, मान लो कि बैक्टीरिया को क्या करना है, लंग्स में एंटर करना है, वो नोज के थ्रू लंग्स में गई एंड आफ्टर दैट क्या आपको सिम्टम्स दिखेंगे, यू विल बी कफिंग, राइट, खांसी होगा। सो द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ ए डिजीज विल दस डिपेंड ऑन द डिजीज ऑफ ऑर्गन, टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। मान लो कि माइक्रोब का टारगेट है कि वो लंग्स में इन्फेक्शन कराएगी, तो आपको सिम्टम्स कैसे दिखेंगे इन्फेक्शन के बाद, यू विल बी कफिंग। तो माइक्रोब कहाँ पे है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में है। सो सीवियरिटी ऑफ डिजीज मैनिफेस्टेशन डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ माइक्रोब्स। एक मेंबर है, एक माइक्रोब है, तो आपको सिम्टम सीवियर ना पता चले, लेकिन जब बहुत सारे माइक्रोब आ जाएंगे सो यू विल हैव अ सीवियर इफेक्ट। जैसे कि, ठीक है, तो मान लो कि आपको बुखार होने वाला है एंड यू डोंट नो अबाउट इट, उससे पहले क्या करते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड एक बोला जाता है जिसमें माइक्रोब्स क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, अपना नंबर बढ़ाते हैं, ग्रुप बनाते हैं। ओके, तो वो क्या करते हैं, पहले मान लो कि एक माइक्रोब आया, ठीक है, वो फिर अपने दोस्तों को इकट्ठा करेगा ताकि वो लोग एक साथ मिलकर आपके बॉडी के सेल्स के ऊपर अटैक कर सके। तो उसी के तरह जितने ज़्यादा माइक्रोब्स आएंगे आपकी बॉडी में इफेक्ट उतने ज़्यादा दिखेंगे। नाउ इन्फ्लेमेशन क्या है, कभी कभी देखा है अचानक से आपको बुखार आती है, आपको सर्दी नहीं होती लेकिन बुखार आती है, कभी कभी अचानक से बॉडी में दर्द होने लगता है, कभी कभी पैर में, बॉडी पार्ट्स में स्वेलिंग होता है, किसकी वजह से, ये जो माइक्रोब्स आ गए ना, ये जो माइक्रोब्स क्या करेंगे, अपना नंबर बढ़ा देते हैं, ठीक है, ये जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स है। तो हमारी बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वो भी तो फाइट करेगा, तो फाइट करने के लिए कुछ रिएक्ट करता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी के सेल को रिएक्ट करवाता है, जिसी के वजह से फीवर होता है। तो कभी कभी फीवर भी अच्छे होते हैं, जैसे सर्फ एक्सेल में नहीं दिखाता दाग अच्छे हैं, तो बुखार भी अच्छे हैं, कभी कभी के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में क्या करते हैं, फाइट करने के लिए वो रिएक्ट करते हैं। अंडरस्टूड। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस पार्ट। इन द लेटर पार्ट वी विल बी डिस्कसिंग कि ये सारे डिजीज को हम ट्रीटमेंट कैसे करें, ठीक है। ओके, सो फ्रॉम द बिटरनेस ऑफ डिजीज मैन लर्न्स द स्वीटनेस ऑफ हेल्थ। इसका मतलब क्या है, जैसे कि पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि हेल्थ का इम्पोर्टेंस तब पता चलता है जब वो आपके पास नहीं होता, उसी की तरह ये भी एक कोट है कि जो हेल्थ है उसका इम्पोर्टेंस आप तब तक नहीं पता लगा सकते हो जब तक आपको कोई बीमारी ना हो। बीमारी में पड़ोगे तभी आपकी बुद्धि आएगी, तभी आप हेल्थ का केयर लोगे। ओके, so with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel. Till then, stay safe and stay happy, and thank you.